Hello everyone and welcome to our channel. Today we are going to start our one of the very important chapter of the accounts, that is journal. Basically what is journal? It is derived from the word jur which means a day. Clear? तो जब भी हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को, व्हाट इज़ ट्रांजेक्शन? डीलिंग्स ऑफ अ बिजनेस. तो जब भी हम अपनी डीलिंग्स को जो कैश में मेजर हो सकती है, मनी में मेजर हो सकती है, अगर हम उसको डेली बेसिस पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो दैट बुक इज़ नोन एज अ जर्नल. तो इट इज़ वन ऑफ द बेसिक बुक ऑफ अकाउंट्स in which transactions are recorded on a daily basis. One thing, when the size of business is small, it is very easy, it is very much possible to enter each and every transaction of the business in journal. But when the size of business grow, it is not possible to record each and every transaction in the journal. And then we maintain some subsidiary books known as a cash book, purchase book, and that we will do in a further videos. So first we are going to start our journal. So what is journal? It is a book of account which records the transaction on a daily basis. Now we will do what are the rules of journalizing, मतलब how to put entry in the journal. So what are the rules of journalizing? What are the rules to put entry into a journal? Before recording a journal entry, it is very much essential to analyze a transaction so that you are able to determine which two accounts are most affected in the entry, in the transaction. So first we will consider our transaction, then we will consider which two accounts are affected at most, and after that we will, with the help of the 3 golden rules, we will pass the journal entry. So let me tell you first the 3 golden rules. First rule is of nominal account, means debit all expenses and losses, credit all income and gain. What is rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. And next one is personal account. Debit the receiver, credit the giver. Done. तो now we will consider कि हमारे सामने कौन सी transaction है and how we will record that transaction in journal. For example, the first transaction we gave, वैसे ऐसा लिखा नहीं आएगा, we gave ₹20,000 to गोपाल. ऐसे आएगा कि paid to गोपाल ₹20,000. So now first read the transaction, analyze very carefully कि which two accounts are affected in this. One is Gopal, that is a personal account. Then paid मतलब cash, and cash is a real account. Done. ये आपको स्टार्टिंग में ऐसा करना पड़ेगा, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ट्रांजैक्शन को देख के समझ आ जाएगा कि आपने किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है. तो यहाँ पे पेड टू गोपाल. अब आपने सोचना है, यू आर अ बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन एंड आपने गोपाल को पे किया. अब ये जो पर्सन है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर है या गिवर है, आपने गोपाल को पे किया तो गोपाल ने क्या किया, रिसीव किए. तो गोपाल इज अ रिसीवर फॉर योर बिजनेस, एंड रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट. डन. जब हमने बात की पेड टू गोपाल, कैश पे किया. जब कैश किसी को पे करते हैं, आप किसी शॉप पे सामान खरीदते हो और यू आर पेइंग कैश, तो मुझे एक चीज़ बताओ, कैश आ रहा है बिजनेस से या जा रहा है? तो ऑब्वियसली अगर आ रहा है तो आपने डेबिट करना है, अगर जा रहा है तो आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है. व्हेन यू विल मेक अ पेमेंट, तो कैश क्या होगा, इट विल गो आउट ऑफ द बिजनेस. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैश क्योंकि बिजनेस से बाहर जा रहा है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. डन. तो इस हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो इस ट्रांजेक्शन को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है. सबसे पहले हमने डेबिट को रिकॉर्ड करना है, एंड देन हमने किसको रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट को रिकॉर्ड करना है.
क्लियर। तो अभी बिना फॉर्मेट के हम सिंपल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। गोपाल रिसीवर है, इसलिए हम गोपाल को क्या करेंगे, डेबिट, एंड कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। जब भी हम किसी चीज़ को क्रेडिट करते हैं हम टू से स्पेसिफाई करते हैं, टू कैश अकाउंट। क्लियर। जब भी हम किसी पर्सन के साथ अकाउंट लिखते हैं तो हम ये पोस्ट ऑफिस एस ज़रूर डालते हैं। हम गोपाल्स अकाउंट बोलेंगे, गोपाल अकाउंट नहीं बोलेंगे, या तो गोपाल डेबिट बोल देंगे या गोपाल्स अकाउंट डेबिट बोलेंगे। देन किसी भी पर्सन के साथ अगर अकाउंट लिखने हैं तो एस ऐसे ही लिखना है। देन what is the amount, 20,000 and 20,000. Now we will do the another transaction. Purchased machinery worth rupees 10,000 from Ram. Then अब यहाँ पे हमने इस ट्रांजेक्शन को भी एंटर करना है। हमने मशीन खरीदी। अच्छा, ये मशीन जब हम बात करते हैं, अगर मेरा काम कपड़े का है तो ये मशीन मेरे लिए क्या है, एक एसेट है। तो एसेट को जब भी आपने रिकॉर्ड करना है तो उसके नेम के साथ रिकॉर्ड करना है। एंड किससे खरीदी मशीन, राम से खरीदी। अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि फॉर कैश खरीदी, और अगर पर्सन का आपको नेम दिया है साथ में कैश या चेक कुछ भी नहीं लिखा हुआ, देन इट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि आपने उसे उधार पे खरीदा है, दैट यू विल पे लेटर ऑन। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं परचेज की मशीन, जब आप मशीन खरीदोगे, मशीन क्या है, एसेट है। एसेट किसके साथ डील करते हैं, रियल अकाउंट के साथ। और रियल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। यू हैव टू एवरी टाइम रिकॉल ऑल द फॉर्मूला। रियल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई एसेट बढ़ता है तो डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई एसेट कम हो जाता है तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अब आपने मशीन खरीदी, जब आपने मशीन खरीदी तो मशीन खरीदने से क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि मशीन क्या हो चुकी है। जब आप खरीदोगे तो मशीन एक थी, अब एक और मशीन खरीदी, दो हो जाएगी, एक और मशीन खरीदी, तीन हो जाएगी। तो मशीन को खरीदने से मशीन वाला जो एसेट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बिकॉज रियल अकाउंट मशीनरी है, तो मशीनरी क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देन एक चीज़ आपको डेबिट मिलनी है, एक चीज़ आपको क्रेडिट मिलनी है। अब यहाँ पे राम आया। जब राम की बात करें तो राम है पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्लियर, क्रेडिट द गिवर। अब बताओ, जब आप राम से सामान खरीद रहे हो तो राम आपके बिजनेस के लिए रिसीवर है, कैश का रिसीवर है लेटर ऑन इन फ्यूचर। बट अभी वो मशीन आपको क्या कर रहा है, दे रहा है, वो बेच रहा है मशीन, तो वो आपको मशीन दे रहा है, ही इज अ गिवर। तो गिवर के हिसाब से क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री, मशीनरी, क्योंकि हमने सबसे पहले डेबिट को रिकॉर्ड करना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। या तो राम लिखेंगे या टू राम्स अकाउंट लिखेंगे। व्हाट इज द अमाउंट, 10,000, 10,000। अच्छा, इसी के साथ अगर परचेज्ड मशीनरी ₹4 10,000 फ्रॉम राम बाय कैश लिखा होता तो कैसे रिकॉर्ड करते। अब राम भी है, कैश भी है, मशीन भी है। मशीन तो क्या है, रियल अकाउंट। और यहाँ पे देखो रियल अकाउंट का क्या मतलब था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे जब मशीन खरीदेंगे, मशीन बिजनेस में आ रही है तो मशीन तो फॉर श्योर क्या होगी, डेबिट होगी। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि राम को रिकॉर्ड करें या कैश को। अब राम से खरीदा कैश देके, तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, कैश जा चुका है। राम को तो तब रिकॉर्ड करते अगर उधार पे खरीदा है या उसे आप पे कर रहे हो। तो यहाँ पे राम को अगर आप राम से सामान खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो एंड यू आर पेइंग कैश टू हिम, तो आपके लिए कैश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टू कैश अकाउंट। देन
वाई कैश क्रेडिट, क्योंकि जब आपने राम से मशीन खरीदी तो मशीन के लिए जो पैसा दिया वो बिजनेस से बाहर जा रहा है। कैश इज ऑल्सो रियल अकाउंट। कैश का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो जब कैश का बैलेंस कम हो गया तो आपने कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट। और जब भी हम किसी चीज़ को क्रेडिट करते हैं तो हम टू लिखते हैं। डेबिट में तो हमने डेबिट लिख दिया, लेकिन क्रेडिट में हम क्या लिख रहे हैं? टू लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी? 10,000 10,000। डन। अच्छा, आगे लिखा हो परचेज्ड फर्नीचर या परचेज्ड मशीनरी, कुछ भी दिया हो, एसेट है फर्नीचर भी, ₹10,000। अब यहाँ पे ना पर्सन का नाम लिखा है ना कैश का नाम लिखा है, तो फिर भी हम ये अज्यूम करेंगे इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे फर्नीचर खरीदा, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहते हैं? कोई एसेट बढ़ गया उसको डेबिट करो। फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर बढ़ जाएगा। एक चेयर थी घर पे, अब 2 चेयर्स हो गई, बढ़ गई ना। तो फर्नीचर क्या करना है आपने? डेबिट करना है। और आपने फर्नीचर खरीदा कैश दे के, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, ना पर्सन का नाम लिखा हो ना कैश लिखा हो, वी विल अज्यूम दैट इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टू कैश। अच्छा, इन केस यहाँ पे वर्ड अगर सपोज करो परचेज्ड फर्नीचर बाय चेक लिख दिया हो, तो जब भी वर्ड चेक होता है तो यू विल बाय चेक ₹10,000। जब भी चेक वर्ड होगा तो आपने क्या यूज़ करना है? बैंक। तो जब आपके लिए यहाँ पे फर्नीचर आपने परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बाय चेक परचेज किया, यू विल राइट द वर्ड बैंक हियर। 10,000 10,000। डन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ₹20,000 आर पेड फॉर सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी पेड ये वर्ड आया। सैलरी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। पे किया तो कैश का इन्वॉल्वमेंट हुआ। कैश पे करने पे क्या होता है? बिजनेस से जाता है। तो कैश एसेट है, रियल अकाउंट है। अगर बिजनेस में कोई एसेट आ रहा है तो आपने उसे डेबिट करना है, और अगर जा रहा है तो उसे क्रेडिट करना है। तो कैश जा रहा है तो यू विल क्रेडिट द कैश अकाउंट। और सैलरी एक्सपेंस है तो आप सैलरी को क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डन। अमाउंट इज 20,000। अब इसकी जगह आ जाए रेंट रिसीव्ड। अच्छा, सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब आपने पे किया तो आपके लिए वो एक्सपेंस है, खर्च है, तो इसलिए आपने डेबिट किया। अब रेंट आप रिसीव कर रहे हो तो कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो कैश क्या होगा? डेबिट। रेंट रिसीव कर रहे हो तो रेंट आपकी क्या हुई? इनकम हुई। नॉमिनल अकाउंट कहते हैं कि अगर कोई एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट करना है, अगर कोई इनकम है तो इनकम को क्रेडिट करना है। तो रेंट रिसीव किया तो रेंट आपकी इनकम है, तो आपने रेंट को क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने की है। कोई डाउट है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स।